ہم اپنی اوقات بھول گئے، لیکن میرا رب فرماتا ہے اے میرے بندے، ارے تو جانتا نہیں ہے اپنی اوقات نہ بھول، تو اتنا مت اترا، تو سب کو دیکھ کر کے چل، تو اپنوں کو ملا کر کے چل، تو چغل خوری نہ کر، تو جھوٹ نہ بول، تو غیبت نہ کر، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حلال نہ کر، ورنہ تیرا دن غرور نیچا کر دیا جائے گا، ایک دن تیری اوقات تجھے دکھا دی جائے گی۔ اب جانتے ہو اوقات کہاں دیکھنے کو ملتی ہے؟ تو آؤ، چاہے ڈی ایم ہو، چاہے ایس ڈی ایم ہو، چاہے آئی ایس ہو، چاہے ایس ایس پی ہو، چاہے کوئی منتری ہو، چاہے کوئی سنتری ہو، چاہے کوئی نیتا ہو، چاہے کوئی ودھایک ہو، کتنا ہی بڑا دنیا کا عہدے دار انسان ہو، چاہے بادشاہ ہو، چاہے وزیر ہو، چاہے کوئی بھی ہو، وہ جانے کے بعد میں جب قبر میں رکھتے ہیں تو اپنے ہاتھوں میں مٹی اٹھاتے ہیں دینے کے لیے، تو میرا رب تمہیں احساس دلاتا ہے منہا خلقناکم، لے دیکھ جو تیرے ہاتھوں میں مٹھی بھر خاک ہے، یہ تیری اوقات ہے، یہ تیری اوقات ہے۔ بولو نا، اوقات بھول گئے، اپنی اوقات بھول گئے، ہے نا؟ کیا فرمانا؟ مٹی ہاتھ میں ہوتی نہیں ہوتی ہے، لیتے ہیں ہاتھ میں، لینے کے بعد میں اس طریقے سے میرا رب احساس دلا رہا ہے منہا خلقناکم، دیکھ تیرے ہاتھ میں جو مٹی ہے یہ تیری اوقات ہے، یہ تیری اوقات ہے، یہ تیری عزت ہے، یہ تیری اوقات ہے، یہ تیری عزت ہے۔ اب سمجھ لے یہ مٹھی بھر خاک سے تجھے پیدا فرمایا ہے، منہا خلقناکم، اب پھر مٹی چھوڑ دیتے ہیں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، رب فرماتا ہے ہم نے تجھ کو اس مٹی سے پیدا کیا اور اسی مٹی میں تجھے لے جائیں گے، اسی مٹی میں تجھے لے جائیں گے، ہے نا؟ لے جانا نہیں لے جانا، جی جی۔ منہا خلقناکم، ہم نے اس مٹی سے پیدا کیا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اسی میں لے جائیں گے، اور منہا نخرجکم تارۃ اخری، پھر اسی مٹی سے تجھ کو اٹھایا جائے گا، ہے نا؟ تو جانتے ہو مسلمان بھائیو، یہ 40ویں کا پروگرام ہے، پروگراموں میں باتیں ایسی ہونا چاہیے جب لوگ اکٹھا ہوتے ہیں تاکہ ان کو زندگی کا احساس بھی ہو جائے، ان کے دلوں کو اور دماغ کو سب کو جھنجھوڑا جائے اور دین کی باتیں بتائی جائیں۔ خدا کی قسم یہ دنیا فانی ہے، یہ ختم ہونا ہے، مکان پھٹ جائیں گے، سورج پھٹ جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، زمین آسمان پھٹ جائے گا، سب کچھ فنا ہو جائے گا، اور جب تم میرے پیارے اسلامی بھائیو باقی جو رہے گا وہ تمہارے نام اعمال باقی رہ جائیں گے۔ ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں، دیکھیے انسان جو ہے نا، انسان کا معاملہ کیا ہے؟ ایک تو ہے روح، کیا ہے؟ روح، اور ایک کیا ہے؟ جسم، ہے نا؟ یہ 80-90 کلو کا وزن ہمارے پاس جو ہے روح ہے اور جسم ہے، اور اس کے بعد میں کیا ہے؟ نام اعمال، کیا ہے؟ نام اعمال۔ اب بتاؤ کہ جب موت کا وقت قریب آ گیا، ہزاروں کے مجمع میں تھا، بال بچے خاندان پریوار والا تھا، بڑی لاٹھیوں والا تھا، بڑے رتبے والا تھا، بڑے پیسے والا تھا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جنہیں پیسے والا اتنا رتبے والا انسان، میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب اس کی روح نکال لی جاتی ہے۔ انسان ہے نا، ایک تو ہے روح اور ایک ہے جسم، ایک ہے نام اعمال۔ اب روح لے گا ملک الموت، روح لے گئے ملک الموت، باقی کیا رہا؟ بتاؤ نیچے اوپر سے کیا رہا؟ جسم، اور کیا رہا؟ نام اعمال۔ جب ہم نے نہلا دیا، کفنا دیا، دفنا دیا، کچھ دنوں کے بعد میں اس نازک سے جسم کو مٹی کھا گئی۔ اب بتاؤ باقی کیا رہا؟ کیا رہا باقی؟ اور نام اعمال۔ نام اعمال جانتے ہو، کسی کو ستایا وہ باقی رہا ہے، کسی کو گالی دی ہے وہ باقی رہا ہے، کسی کی چوری کی ہے وہ باقی رہا ہے، کسی نے شراب پی ہے وہ باقی رہا ہے، جوا کھیلا ہے وہ باقی رہا ہے، ماں باپ کو ستایا ہے وہ باقی رہا ہے، اور اس کی عزت نہ کی ہے وہ تمہارا باقی رہا ہے، تم نے کسی کو دعا سلام کیا وہ باقی رہا، تم نے کسی کو قرآن کی تلاوت کی ہے وہ باقی رہا، تم نے میلاد پڑھی ہے سنی ہے وہ تمہارا باقی رہا، تم نے بڑوں کی عزت کی ہے وہ تمہارا باقی رہا، تم نے درود پڑھا ہے تو باقی رہا، تم نے کلمہ پڑھا ہے تو باقی رہا۔ خدا کی قسم پیارے اسلامی بھائیوں، جب یہ باقی رہا تو احساس کر لو، اور اس میلاد مصطفیٰ سے احساس کر کے جاؤ، 10 سالہ زندگی گزرے یا 20 سالہ، 30 سالہ یا 40 سالہ یا 100 سالہ، یہاں سے انشاءاللہ اٹھ کے جائیں گے تو اچھائیوں میں رہ کر کے اپنی زندگی کو پوری کوشش کریں گے۔ چلیے سمجھ میں آ جائے گی، سمجھ میں ہم اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، میرے فون پر فون آ رہے ہیں، مجھے امید ہے آپ کو سمجھ میں آتا ہوگا۔ سن لو، میں آرام سے سمجھا دوں گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کتنی اچھی بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ منہا خلقناکم، اس کا مطلب سمجھ گئے؟ وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اس آیت کریمہ کو
भाइयों याद कर लेना, नौजवानों तुम भी याद करना, बच्चों तुम भी याद करना, सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो, याद कर लेना। तुमने गानों से दिल लगाया, गाने तुम्हें याद हो गए। तुमने कव्वालियों से दिल लगाया, कव्वालियां तुम्हें याद हो गई। तुमने जिस चीज से दिल लगाया वो तुम्हें याद हो गई। हे मुसलमान भाइयों, अब तुम्हें इन तमाम चीजों से दिल लगाने की जरूरत लगी है, दिल हटाने की जरूरत है। तुम नमाज से दिल लगा लो, नमाज तुम्हें याद हो जाएगी। तुम्हें आयत करीमा से दिल लगा लो, आयत करीमा तुमसे याद हो जाएगी। प्यारे इस्लामी भाइयों, जिस चीज से दिल तुम लगाओगे अल्लाह ताला वो तुम्हारे सीनों में महफूज कर देगा। नमाज से याद करके जाना, व्हाट्सएप खोलना, फेसबुक खोलना, मोबाइल खोलना और किताबें ले लेना, जिसको जैसा आता हो वैसा कर लेना, बस आयत करीमा डाल लेना। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, ताकि कब्रिस्तान में जाके मौलाना की जरूरत ना पड़े, हम ही पढ़ पढ़ के डालते रहे। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। ये कैसे होगा? बताओ कैसे होगा? याद करोगे तभी तो होगा। लेकिन क्या करें यार, हमारे भाई हमसे बड़े वो हो गए हैं, हम ही लोग बताते हैं और लोग हमारी ही जड़ काटने लगते हैं। समझ रहे हैं? हम लोग बताते हैं और हम अपना आदमी, हम ही लोगों को जिनसे दीन चल रहा है। नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत के उलमा मेरे दीन के वारिस हैं, उलमा नहीं तो दीन भी नहीं रहेगा। चाहता रब ताला तो नबी पैदा करता, यानी नबियों को भेजता और तमाम चीज़, लेकिन नहीं, नबी आखिर ज़मा है, उनके बाद में नबियों का सिलसिला आना बंद। लेकिन रब के महबूब ने शायद फरमाया कि क़यामत तक अल्लाह के वली आते रहेंगे, उलमा इकराम है, दीन को मेरा चलाते रहेंगे। न कोई देखो अल्लाह का नबी आएगा, बल्कि उलमा इकराम ही है जो तुम्हें अच्छाइयों की दावत देते हैं, अच्छाइयों की तरफ लेते आते हैं। खुदा की कसम, जिनका माहौल इस्लामी नहीं होता है, जिनकी नमाजें नहीं होती हैं, जिनकी तमाम बातें नहीं होती हैं, वो नाम के तो मुसलमान रहते हैं लेकिन उनको ये पता ही नहीं है इस्लाम होता क्या है। आवाज से ये याद कर लेना, हम आधी रोटी खाएंगे और अपने बच्चों को इंशाअल्लाह कुरान पाक जरूर पढ़ाएंगे। पढ़ाएंगे? अरे बोलो पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह, अपने बच्चों को कुरान पाक जरूर पढ़ाएंगे। अब मैं इस कलाम के जरिए मैं आपको बात पहुंचा दूं, फिर अपनी मैं बात खत्म कर रहा हूं। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लम। मैं ये बताना चाहता हूं, मरने वाला तो चला गया, बताओ तुम्हारी बिरयानी की जरूरत है उसे? तुम्हारे कोफ्तों की जरूरत है, लेग पीस की जरूरत है, चाप की जरूरत है, या तमाम शामी कबाबों की जरूरत है? बताओ कोई जरूरत है उसे? अरे वो तो चला गया। इस्लाम के कानून जब तक हैं, जब तक के 10 साल की उम्र हो, इस्लाम के कानून जो उस पर लागू हो जाएं, और जब तक सांस चलती रहेगी इस्लाम के कानून उस पर लागू रहेंगे, और सांस बंद इस्लाम के कानून बंद हो जाते हैं, है ना? खाना पीना। अच्छा एक बात बताओ, मरने वाला मर गया, अब थोड़ी से 2 मिनट तहवील की बात सुन लो। एक आदमी पेट का बहुत बड़ा लालची था, बहुत बड़ा लालची था, कहीं दावत हो जाती थी, सोचता था इतना खा लूं कि पेट बिगाड़ लिया करता था। अब वही इंसान मर जाए और मरने के बाद में मुर्गे की टांग उसके मुंह में डालो तो वो मुस्कुराएगा तक नहीं। हम पूछते हैं ये तो बता, जब तू सही सालिम था तो तेरी दावत कहीं हो जाती थी तो बड़ा खुश होता था, घर पे अच्छे पकवान हो जाते थे, बड़ा खुश होता था, और आज तेरी रूह निकल गई, अब हम तेरे मुंह में मुर्गे की टांग अपने हाथों से डाल रहे हैं तो तू मुस्कुरा तक नहीं रहा है। तो जानते हो मरने वाला क्या जवाब देता? तवज्जो कीजिएगा, यहाँ से लेकर वहां तक तवज्जो कीजिएगा। जवाब देता है कि मौलाना अरे तुम्हें पता नहीं है, ये खाना इस दुनिया का है, मैं उस दुनिया में जा रहा हूँ जहाँ ये चलता नहीं है। हकीकत है या नहीं है? अरे अभी जब कुछ बनेगा तो हम ही तुम लोग तो खाएंगे, है ना? यही तो होगा। क्या कहा? मैं उस दुनिया में जा रहा हूँ जहाँ ये खाना चलता नहीं है। उसके बाद में कहा जाता है एक पैसा आदमी जो था पैसे का बहुत बड़ा लालची था, और 1-1 रुपए के चक्कर में वो जान दिए घूमता था। 1-1 रुपए के चक्कर में जिसने अपनों को अपना न समझा, जिसने बेगानों को बेगाना न समझा, जैसा मिला दबाता गया, रुपया जेबों में बैंकों में भरता गया, मकानों में भरता गया, वही पैसे का लालची मर गया। और जब वो मरा, अब उसको तुम नोटों की चादर उसको उड़ा दो, नोटों के बिस्तर पे उसे सुला दो, और सुलाने के बाद में हम कहते ये तो बता, अरे तू मुस्कुरा तक नहीं रहा है, तू वही तो है जो 1 रुपए के चक्कर में जान दिए घूमता था। अब तो हमने नोटों के बिस्तर पे तुझे लिटा दिया है, नोटों की चादर हमने तुझे उड़ा दी है, अरे तू मुस्कुरा तक नहीं रहा है। तो जवाब मिलता मौलाना तुझे मालूम नहीं, अरे ये पैसा इस दुनिया का है, मैं उस दुनिया में जा रहा हूँ जहाँ ये चलता नहीं है। बताओ बात हकीकत है या नहीं है? अभी ये पैसा मैं संभाल के रख रहा हूँ,
इसे जब मैं जेब में रखूं तुम हाथ डालो तो मैं पकड़ लूंगा, निकाल लेना दूं, और जब मेरी रूह निकल जाए तो फिर पता है अरे 10,000 हो या 1 लाख 2 लाख हो, कोई रोक नहीं सकता। हम कितने परिवार वाले थे, कितने खानदान वाले थे, कितने रुतबे वाले थे, कितने पैसे वाले थे, गाड़ियां हमारी चल रही थी, जमींदार हमारे थे। प्यारे इस्लामी भाइयों, सब कुछ हमारा था, सब कुछ हमारा था, लेकिन हमारा परिवार हमसे जब कोई एक बात कहता था तो 10 भाई लाठी लेकर के आ जाते थे। हमसे कोई तू बात करता था, पूरा परिवार पूरा खानदान खड़ा हो जाता था। लेकिन प्यारे इस्लामी भाइयों, अब तो कमजोरी इतनी आ गई है, हमारी रूह निकल गई। रूह निकलने के बाद में अब तो इतनी ताकत लगी है, एक मक्खी बैठ जाए तो उड़ा सके। जो जिस्म पर फाखराना हमने लिबास पहना था, वो भी ये ताकत नहीं रखी कि हमारे जो लिबास निकाल सके। इतना फखरिया लिबास पहनने वाला आज उतार नहीं पा रहा है, बल्कि कैंचियों से काटा जा रहा है, कैंचियों से निकाला जा रहा है। अल्लाह ताला तौफीक दे हम सबको अच्छे काम करने की, नेक काम करने की। प्यारे इस्लामी भाइयों, जिंदगी जियो अच्छाइयों में रह करके, बुराइयों से बचने की कोशिश करो, और अपने बच्चों को दीन इस्लाम पढ़ाओ, कुरान की तालीम उन्हें दो, ताकि पता चले सब कुछ यही रह जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, बस नामे आमाल बाकी रहेंगे। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। मैं 2-3 शेर पढ़ने की कोशिश करता हूँ, फिर अभी बात को खत्म कर दूँ। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातन व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जब मरने वाला जाता है उसकी ख्वाहिश क्या होती है, सुनिएगा। और ये 40वां है, अब कभी बरसी की फातिहा हो तो हमारी माँ बहनें सुने और हमारे भाई सुने, रिश्तेदार भी सुने। जब भी जहाँ भी जाओ, घर में रहो, तुम्हें कुछ रोने धोने की जरूरत नहीं है, ज्यादा पकवान करने की जरूरत नहीं है। जरूरत अगर है तो नमाजें पढ़ना और ज्यादा से ज्यादा कुरान पढ़ना, दुरूद पाक पढ़ना, उनकी रूह तुमसे खुश हो जाएगी। शेर समाज फरमाए कि जाता हूँ मैं दुनिया से, मुझको न भुला देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एहसास कीजिए, थोड़ा सा एहसास कि अभी 40 दिन पेशतर हमारा भाई हमारे सामने था, अब वो गया, अब उसको चाहिए क्या कि जाता हूँ मैं दुनिया से, मुझको न भुला देना, जब याद मेरी आए बख्शिश की दुआ देना, जब याद मेरी आए बख्शिश की दुआ देना। अच्छा, आप ये जानते हैं माँ बाप का बहुत बड़ा हक है औलाद पर, और औलाद अपनी जिंदगी में अपने माँ बाप का हक अदा नहीं कर सकती, और 2-4 बार जिंदगी मिल जाए फिर भी क्या नाम है, माँ बाप का हक अदा नहीं कर सकती। लेकिन मरने के बाद भी माँ बाप के हक रहते हैं, मरने के बाद भी माँ बाप के हक रहते हैं। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, आसान सा फार्मूला मैं बता दूं, आप लोग जुमे की नमाज तो जरूर पढ़ते होंगे, इसलिए जुमे की नमाज पढ़ के तुरंत ही आप कब्रिस्तान जाया करो, अपने माँ बाप की कब्रों को सलाम किया करो। जो ऐसा करता है उसके माँ बाप भी खुश हो जाते हैं, अल्लाह के रसूल भी खुश हो जाते हैं। हमारी अफसोस इस बात का है कि हम अपने माँ बाप की कब्रों का निशान भूल गए, है ना, तौफीक नहीं है ना। रिश्तेदारी में जाने के लिए टाइम हमारे पास है, ससुराल जाने के लिए टाइम हमारे पास है, और रिश्तेदारों में न अपने अपने काम से हमारे पास जाने के लिए टाइम है। लेकिन क्या करें, हमारे माँ बाप ने हमें जो अपनी परेशानियां उठा करके हमें पाला था, हम गिर जाते थे, हमारा वालिद हमें गोद में लेकर के सर पे उठा लिया करता था। हमारी माँ ऐसी थी जिसने 9 माह तक अपने पेट में रखा और 2 साल तक अपनी छाती का दूध पिला करके तेरी जिंदगी में वो टॉनिक भरा था, वो टैबलेट भरा था, वो खून भरा था, जिससे तेरे बॉडी बिल्डर बन गया, तेरे शोल्डर बन गए, तेरा जिस्म ताकतवर हो गया, काउंटलो यानी वजन तुझ में हो गया। आज उसी वजन को, आज उसी ताकत को तुझे मोहल्ले में कोई ना मिला। ताकत आजमाता है तो माँ बाप को ऊपर उतरवाता है। अरे तुझे शर्म आना चाहिए, तुझे तो डूब के मर जाना चाहिए। अरे जिसको कांधे के सहारे की जरूरत थी, तुमने हाथों से मारना शुरू कर दिया, तुमने पैरों से मारना शुरू कर दिया। इतने एहसान है, अल्लाह की कसम। तुम जानते हो प्यारे नबी फरमाते हैं, जिसके माँ बाप जिससे नाराज होकर के इंतकाल कर गए, मैं उससे नाराज हूँ, जिससे मैं नाराज हूँ उससे मेरा रब नाराज है, और जिससे रब नाराज है उसका ठिकाना जहन्नम है। फइल्लम तफअलू वलन तफअलू फत्तकुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, है ना।
समझ में आ रही है बात थोड़ी सी? बात बढ़ती चली जा रही है यार, मैं खत्म करना चाहता हूँ। शेर सुन लीजिए कि जाता हूँ मैं दुनिया से, मुझको न भुला देना, जब याद मेरी आए बख्शिश की दुआ देना। अच्छा एक चीज और है, हम लोग ये चाहते हैं हमारा वालिद चला गया तो उसे जन्नत मिल जाए, या हमारा भाई गया उसको है ना, हमारी माँ चली गई उसको है ना, सारे काम हम करते हैं जन्नत के लिए। ये जन्नत को क्या है? ये जन्नत बड़ी आराम की जगह है। अल्लाह ताला तुमसे खुश होकर के तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा। ये तो चाहते हैं। तुम मरने वालों को जन्नत मिलेगी कैसे, वो सुनिएगा और अमल कीजिएगा। तुम चाहते हो मुझको मिल जाए अगर जन्नत, मरने वालों को याद रखें वो क्या कह रहा है। तुम चाहते हो मुझको मिल जाए अगर जन्नत, मिल जाए अगर जन्नत, मिल जाए अगर जन्नत, कुरान मुक़द्दस को, कुरान मुक़द्दस को पढ़ पढ़ के सुना देना, मेरी आए। कुरान पढ़ोगे? अरे पढ़ोगे? अरे बोलो ना, अपने बच्चों को पढ़ाओगे? अरे बोलो। अगर मौलाना 10 मांगते हो तो 20 देना, ये मत कहना तुम्हारे बच्चे तुम जाहिल इसलिए बन गए, तुमने इंग्लिश मीडियम में न जाने कहाँ कहाँ तुमने हजारों रुपया खर्च कर दिया, मौलाना ने 10 रुपया में तुमने निकाल दिया। अरे बोलो कमी बहुत है तुम्हारे अंदर। अरे तुम क्या कुरान को खत्म कर रहे हो? तुमसे पहले न जाने कितने लगे हुए हैं इसी हिंदुस्तान की सरजमी पर। दिल्ली के अंदर कुरान के बरकों को फाड़ फाड़ करके प्रसार बांटी गई थी। इसी जो है पंजाब की सरजमी पर कुरान के बरकों को फाड़ फाड़ करके जलाया गया था। अमेरिका के अंदर इसी कुरान को रख करके और उसमें AK-47 लेकर के उसमें कारतूस भर करके मैगजीन की मैगजीन पूरी खाली कर दी थी कि कुरान खत्म हो जाए। सारी दुनिया के लोग जो हैं कुरान को खत्म करने पर लगे हैं, लेकिन जानते लगी हैं कि दुनिया तो खत्म हो सकती है लेकिन कुरान करके जाना, अपने कलेजों को नोच लेना, अपने बालों को नोच लेना। अरे जिंदगी में हमने क्या करा? बच्चे पैदा करना कोई कमाल नहीं है, बल्कि उनको कुरान पढ़ाना सबसे बड़ा कमाल है। 10 की जगह 20 खर्च करना है आपको, 50 करना है ना। तो जानते हो भाई मर गया, मौलाना साहब नमाज पढ़ाओ, बेटा एक तरफ खड़ा हुआ है ना, किसी के जनाजे में जाओ। अब शेर सुन लो, बात बढ़ जा रही है आगे। तुम चाहते हो मुझको मिल जाए अगर जन्नत, मिल जाए अगर जन्नत, कुरान मुक़द्दस को पढ़ पढ़ के सुना देना, जब याद मेरी आए बख्शिश की दुआ देना। और अब मैं आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ। शेर तो बहुत है लेकिन पूरी इसका हासिल है। मेरी माँ बहनें भी सुने, एहसास करें, मेरे भाई लोग भी बैठे ये भी एहसास करें और ऐसा एहसास कर ले और सोच लें कि जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कुछ है वो दीने इस्लाम है, जो कुछ है वो दीने इस्लाम है। अल्लाह ताला हमें और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब आप थोड़ा सा शेर वही सुनो। जब हमारे यहाँ इंतकाल हो जाता है, इंतकाल के बाद में कहता है जल्दी करो बड़ी देर हो रही है। ये तो कहते ना जल्दी करो बड़ी देर हो रही है, लोग आए हैं वो जाएंगे भी, ऐसा करेंगे वैसे भी करेंगे। अरे इतनी अच्छी सूरत थी जिस सूरत के लिए हम अपनी जान दिए घूमते थे, आज कह रहे हैं जल्दी लेके जाओ, जल्दी लेकर के जाओ, बड़ी देर हो रही है। मोहब्बत कहाँ चली गई, उल्फत कहाँ चला गया, अरे प्यार तुम्हारा कहाँ चला गया, तुम्हारा इश्क कहाँ चला गया। अरे तुझे तो मोहब्बत वाकई थी तो तुझे उससे लिपट जाना चाहिए था। अगर वाकई बेटों को मोहब्बत थी तो बाप की कब्र में लेट जाना चाहिए था। अगर माँ से मोहब्बत थी तो माँ की कब्र में लेट जाना चाहिए था। लेकिन नहीं, इंसान कर सकता था, लेकिन ये जो है कुदरत का कानून है, जो तन्हा आया है वो तन्हा ही कब्र में जाएगा। अब शेर सुन ले। लो देख लो, देखो सूरत बड़ी प्यारी होती ना। लो देख लो ये सूरत कुछ देर दिखाएंगे, लो देख लो ये सूरत कुछ देर दिखाएंगे, कुछ देर दिखाएंगे,
कुछ देर दिखाएंगे, आएंगे ना हम वापस। कोई वापस आता है? नहीं। हाँ? देख लो यार, ये सूरत कितनी अच्छी थी, कितनी प्यारी थी। ये वो सूरत थी जिससे बड़ा पाउडर मसला जाता था, है ना। नौजवान को न जाने कैसे कटिंग दाढ़ियों में निकाला करते थे फैंसी बनने के लिए। सुन यार, लो देख लो ये सूरत, कुछ देर दिखाएंगे, कुछ देर दिखाएंगे, आएंगे ना हम वापस। हमको न सदा देना जब याद मेरी आए, बख्शिश की दुआ देना जब याद मेरी आए, बख्शिश की दुआ देना। मैंने पढ़ा है, किसी को बहुत समझ लीजिएगा, और कोई बात बुरी लगे तो भाइयों माफ कर देना, और अगर लग रही है बुरी तो इतनी बुरी लगा लेना, बुरे कामों से बच जाना, अच्छाइयों में अपना दिल लगा लेना। अब मिल करके आप कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब इसकी थोड़ी सी तारीफ सुन लीजिए। नबी फरमाते हैं जो एक मर्तबा माँ बने याद करो, अकेले में बैठ के तनाई बैठ के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कर लेना, खूब पढ़ना। नबी फरमाते हैं जो एक मर्तबा मोहब्बत से कलमा पढ़ लेता है, अगर उसके कुफ्र के गुनाह, कुफ्र है ना, इसके कुफ्र के गुनाह अगर 700 साल के दिए अल्लाह ताला इस कलमे की बरकत से माफ फरमा देता है। इसलिए तो करते हैं कलमा पढ़ करके। नबी फरमाते हैं 70,000 मर्तबा या 1.25 लाख मर्तबा कलमा पढ़ के जिस मरने वाले के लिए इसाल कर देता है, अल्लाह ताला इस कलमे की बरकत से उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है। अल्लाह ताला मुझे आपको तौफीक अता फरमाए या और हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रात को खारे क्या होना है, पाँव उगारे क्या होना है, खुश्क हैं खून के दुश्मन जालिम, सब तो खून खारे क्या होना है, पार जाना है नहीं मिलती नाव, जोर पर धारे क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है, क्यों रज़ा डरते हो हंसते उठो जब वो गफ्फार है क्या होना है। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। काफी टाइम से प्रोग्राम हुआ है, थोड़ा सा 10-5 मिनट पहले 4 जी हेलो तमाम हाजिर बात सलाम का गुजारिश है कि आप सभी हजरात हम और आप मिलकर मदद खुदा में फरमाने वाले शहीद साहिब मदीना बेकसों का सहारा बेबसीला को वसीला बेमदद छुड़ाने वाला खातमुन नबी सैयदुल मुरसलीन शफीउल मुज़नबीन की बारगाह रिसालत में मोहब्बत का शरीर व तैयब मुसलमान रहमान से गुरुदेव पाक